अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो स्टूडेंट्स, आइए आगे ट्रांसलेशन करते हैं। पेज नंबर 25। It was all very well when Tom was young and good looking. But he is only a year younger than I am. In 4 years, he will be 50. He won't find life so easy then. I shall have 30,000 pounds by the time I am 50. For 25 years, I have said that Tom would end in the gutter, and we shall see how he likes that. We shall see if it really pays best to work or be idle. Poor George, I sympathized with him. I wondered now, as I sat down beside him, what infamous thing Tom had done. George was evidently very much upset. Do you know what's happened now? He asked me. I was prepared for the worst. I wondered if Tom had got into the hands of the police at last. George could hardly bring himself to speak. You are not going to deny that all my life I have been hardworking, decent, respectable, and straightforward. After a life of industry and thrift, I can look forward to retire on a small income in gilt-edged securities. I've always done my duty in that state of life in which it has pleased Providence to place me. True. तो आइए इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं. Make sure that you also read the text by your own self. Reading is very important. If you can't read the text, how can you understand it? So first of all, we should read in a good way so that we can understand every verse and translation. So let us begin translating. It was all very well. सारी चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक थीं. When Tom was young, जब टॉम नौजवान था, and good looking, और खूबसूरत था. To be good looking means to be beautiful, to be handsome, to be charming, to be attractive. Okay? So, to be good looking means handsome, खूबसूरत. But he is only a year younger than I am. लेकिन वो सिर्फ 1 साल का छोटा था मेरे से. In 4 years, 4 सालों में, he will be 50. वो 50 साल का हो जाएगा. He won't find life so easy then. फिर वो जिंदगी को काफ़ी आसान नहीं पाएगा. Find means पाना. To find life so easy means life को काफ़ी आसान पाना. He won't find, वो नहीं पाएगा ज़िंदगी को काफ़ी आसान उस वक़्त. तो यहाँ पे won't असल में क्या है? Will not है. ये इसको
इंग्लिश के भाषा में हम कहते हैं कंट्रैक्शन, यानी दो वर्ड को काट करके छोट कर दिया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंट्रैक्शन कहते हैं। I shall have 30,000 pounds. मेरे पास 30,000 पाउंड्स होंगे। By the time I am 50, उस वक़्त तक जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा। ओके, to be 50 means to be 50 years old. By the time means उस समय तक, उस वक़्त तक। I have said, मैं कह चुका हूँ, that term would end in gutter, कि टर्म का जो इंतहा होगा, टर्म की इंतहा होगी इन द गटर, नाली में। यानी टर्म की जो ज़िंदगी है, जो ये टहलता है, घूमता है, काम नहीं करता है, इसकी ज़िंदगी लास्ट में जो है नाली ही में गिरेगी। यानी इसका इंतहा जो होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। End in the gutter means in the total waste, यानी वो पूरे खसारे में हो जाएगा। And we shall see, और हम लोग देखेंगे, how he likes that, कि वो उस चीज़ को कैसे चाहता है। To like something means to want something, यानी चाहना। We'll see माने मतलब see माने होता है देखना, लेकिन मतलब देखने का मतलब यानी हम देखेंगे कि फिर क्या होता है टर्म के साथ। We shall see, हम देखेंगे, if it really pays best work, कि क्या यकीनन काम करना ज़्यादा अच्छा है, or be idle, या सुस्त होना ज़्यादा अच्छा है। Pay best means यानी अच्छा होना, अच्छे देना, काम का अच्छा बदला होता है या सुस्ती का बदला अच्छा होता है। तो to be idle means to be lazy. A lazy person who does not do anything for his life, but he wanders and wonders. ओके, आगे चलते हैं। Poor George, बेचारा जॉर्ज। I sympathized with him, मैंने उसके साथ हमदर्दी दिखाई। सिंपैथाइज माने होता है हमदर्दी दिखाना। शो सिंपैथी, शो समवंस योर सिंपैथी, यानी अपना हमदर्दी दिखाना। I sympathized with him, मैंने उसके साथ हमदर्दी दिखाई। I wondered now as I sat down beside him what infamous thing Tom had done. I wonder means होता है I think, I thought. Wonder means होता है सोचना। I wondered now, मैंने अब सोचा जब मैं बैठा हुआ था उनके एक जानिब। बिसाइड माने होता है जानिब, लेकिन अगर यही वर्ड यस के साथ आए तो इसका माना होगा अलावा अजी, अलावा। बिसाइड्स के माने अलावा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका माना क्या है? जानिब।
सिट डाउन के माने होता है मतलब बैठना। आई वंडर, मैंने सोचा उस वक़्त जब मैं उसके साथ बैठा हुआ था। What happened कि क्या हो गया है। What infamous thing कि कौन सी बुरी काम, रुस्वा करने वाली चीज़ टॉम ने कर दिया है। Infamous means I think that is not good but bad, यानी bad thing। Infamous bad thing कि टॉम ने क्या कर दिया है, कौन सा रुस्वा करने वाला काम टॉम ने अंजाम दे दिया है। जॉर्ज was evidently very much upset। जॉर्ज स्पष्ट रूप से काफ़ी गमज़दा था। ओके, एविडेंटली मीन्स होता है क्लियरली, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, साफ तौर से। टू बी वेरी मच अपसेट मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा अपसेट होना, गमज़दा होना। टू बी वेरी मच अपसेट, आई एम वेरी मच अपसेट यानी मैं काफ़ी गमज़दा हूँ। जॉर्ज वॉज एविडेंटली वेरी मच अपसेट। जॉर्ज साफ तौर से बहुत ही गमज़दा था। डू यू नो व्हाट हैपेंड नाउ, ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी, वो मुझसे पूछा, यानी जॉर्ज ने। डू यू नो, क्या जानते हो तुम, व्हाट्स हैपेंड नाउ, अब जो हुआ है, क्या जानते हो तुम। ही आस्क्ड मी, उसने पूछा मुझसे। I was prepared for the worst, यानी मैं रेडी था, मैं तैयार था। For the worst reply, I think, मैं बुरे जवाब के लिए तैयार था। To be prepared means to be ready, यानी to be ready means यानी तैयार होना। For the worst ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव वर्ड का, और ये इर्रेगुलर फॉर्म है, यानी जिसे कहते हैं बैड और द worst, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। I wondered, मैंने सोचा, if Tom had got into the hands of the police at last, कि क्या टॉम बिला आखिर पुलिस के हाथों में आ चुका है। Get into the hands of someone के माने उनके हाथ में चले जाना या उनके कब्जे में चले जाना। I wondered, मैंने सोचा, if Tom had got into the hands of the police at last, कि क्या टॉम बिला आखिर पुलिस के हाथों पकड़ लिया गया है। George could not hardly bring himself to speak. जॉर्ज बमुश्किल ला सकता था, यानी अपने आप को बोलने के लिए, यानी जॉर्ज नहीं बोल सकता था इल्ला कि काफ़ी परेशान हो करके। हार्डली मीन्स बमुश्किल। ब्रिंग माने लाना, हिमसेल्फ अपने आप को, टू स्पीक बोलने के लिए। You are not going to deny that all my life
आप इनकार नहीं करोगे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, to deny means to refuse, इनकार करना। I've been hardworking, मैं एक मेहनती आदमी था। Decent, एक शाइस्ता आदमी था। Respectable, काबिल एहतराम आदमी था। And straightforward, और सच्चा आदमी था, सीधा आदमी था। यानी आप नहीं इनकार कर पाओगे कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक मेहनती आदमी, शाइस्ता, काबिल एहतराम और सीधा साधा आदमी था। ओके, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, एंड डिसेंट मीन्स यानी शाइस्ता, रिस्पेक्टेबल मीन्स काबिल एहतराम, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स सच्चा या सीधा साधा। After a life of industry and thrift, मेहनत और किफ़ायत शारी की ज़िंदगी के बाद, I can look forward to retire on a small income in gilt-edged securities. I can look forward, मैं सोच सकता था to रिटायर होने के लिए, on a small income, एक छोटे आमदनी पर, in gilt-edged सिक्योरिटी, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी के अंदर, ये कोई मतलब है कंपनी वगैरह या नाम, शेयर का नाम। तो लुक फॉरवर्ड मीन्स टू प्लान, टू थिंक, एंड थ्रिफ्ट माने होता है, थ्रिफ्ट इकोनॉमी, यानी यू सेव योर मनी, यू डोंट स्पेंड अ लॉट, you save your money for your rainy days, so that is called thrift, yani kifayat shari. I have always done my duty in that state of life in which it has pleased providence. I have always done, मैंने हमेशा अपनी फ़र्ज़ अदा की है, इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के उस हालत में, इन विच जिसमें इट हैज़ प्लीज्ड, इसने खुश कर दिया है, प्रोविडेंस, राज़िक को, मालिक को, टू प्लेस मी, कि वो मुझे आगे करें। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे टू डू समवंस ड्यूटी मतलब अपना फ़र्ज़ अदा करना, स्टेट माने हालत, एंड प्लीज्ड, टू बी प्लीज्ड माने होता है टू बी हैप्पी, यानी खुश होना। लेकिन अगर प्लीज़ का इस्तेमाल करेंगे टू प्लीज़, तो माने इसका माने होगा खुश करना। एंड प्रोविडेंस मीन्स होता है राज़िक, जो आपको रोज़ी देता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोविडेंस। टू प्लेस मी यानी टू प्लेस मी फॉरवर्ड, कि वो उसको आगे करे, मैं आगे हूँ। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड every verse and meaning today, and as well as the translation of the lesson. See you next time. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.